Hello dear student, welcome to this course on complex analysis. This is your lecture number 4 in this week number 2 of your complex analysis. So what we did in the previous 3 lecture, we understood the concept of limit, continuity and differentiability for a complex valued function, right? Now after that we understood the concept of analytic function, that if you have a function and it is differentiable at z0 as well as on some neighborhood of z0, then you will call that function f to be analytic at that point z0, right? This was the definition that we used. Now after that what we understood is that if you have a function analytic, suppose fz is analytic and it is analytic at some point, and your function is expressed at u plus iota v, then we understood that both u and v are actually the harmonic functions. U and v both are harmonic functions. And suppose after that what we studied is, suppose you have a harmonic function u, then you can always find out its harmonic conjugate, that is v, such that u plus iota v is harmonic, right? So this is what we did in the previous 3 lectures. Now in this lecture we will be beginning the new thing, and it is called elementary functions. So elementary functions, see, you understood functions very well in the case of real analysis. You have trigonometric function, you were studying it from class 10th, so you did in 10th, 11th, 12th, right? And inverse trigonometric functions also. Now after that we studied polynomials on real numbers. So from a very beginning we were doing work in the functions, in the real functions, right? Now it's time to do a work in complex functions also, that if you have a trigonometric function but it's a function from complex plane, that means sine z, cos z. What is the meaning of these trigonometric function in case of complex analysis? We will understand that in this week. But we will be beginning with exponentials, e to the power z. So firstly we will understand the properties of e to the power z, and using the properties of e to the power z we will understand cos x, sine hyperbolic x, cos hyperbolic x, things like this. All right, so now let us begin. तो सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना है कि पीरियड का क्या मीनिंग है किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए. तो जिस तरीके से रियल एनालिसिस में पीरियड का मीनिंग था, सेम टू सेम वैसा ही मीनिंग यहाँ पर भी है. तो सपोज करा कि आपने कोई फंक्शन आपने fz लिया, किसी डोमेन पर आपने उसे डिफाइन कर दिया, राइट? Now we will call a number p as its period. Number means complex number, right? So we will call a number p as its period if f of z plus p is equal to f of z. All right, so now let us write the definition. तो पीरियोडिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो क्या लिखेंगे? Let f be a function, ठीक है, defined in a domain omega, is said to be periodic, ठीक है, if there exists a non-zero complex number, p such that whenever z belongs to omega and z plus p belongs to omega, we have f of z is equal to f of z plus p. All right, then you will say that p is your period, ठीक है? So क्या लिखेंगे? We call p as the period, ठीक है, पीरियड ऑफ f. तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. डेफिनेशन सिंपली ये है कि अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन करा ओमेगा के ऊपर और उसमें से आप कोई क्या उठा रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपने उठाया ओमेगा में से, सच दैट z प्लस पी भी क्या है, ओमेगा का ही एलिमेंट है, देन यू विल से p एज योर पीरियड, अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ पर हाईलाइट करने वाली जो बात है वो ये है कि कहीं आप p को जीरो मत ले लेना, क्योंकि p को जीरो ले लोगे तो ये तो ऑलवेज सेटिस्फाई होगा. तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है.
अगर p को 0 ले लोगे तो ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, फिर तो किसी भी फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। सो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर p, सो क्या हम लिख रहे हैं, वी विल कॉल p एज द पीरियड ऑफ f। ठीक है, ऑलराइट। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, तो सबसे पहले तो ट्रिवियल सा एग्जाम्पल, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टेक f, कॉम्प्लेक्स प्लेन से मैंने मान लो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिफाइन किया, एफ जेड इज इक्वल टू मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू मैंने डिफाइन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो मैंने 5 लिख दिया। सो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ऑलराइट, सो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। नाउ आगे चलते हैं। अब जैसे यहां पर एक नोट मैं लिख रहा हूं, तो अगर मैं p को कोई पीरियड मान लूं कि इफ p इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो सॉरी इफ p इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, इफ p इज अ पीरियड, ठीक है, इफ p इज अ पीरियड ऑफ द फंक्शन f, ठीक है, कोई फंक्शन f है और उसका मान लो आप पीरियड p है, देन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, आप कह सकते हो कि np भी क्या आएगा, पीरियड होगा। ठीक है, np बिलोंगिंग टू डोमेन, तो मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि आपके पास, जैसे आप क्या करोगे, नहीं डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है कि कहां पर वो है इसमें प्रेजेंट। वैसे तो क्या लिखेंगे कि np फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, np विल बी अ पीरियड ऑफ f। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखता हूं पीरियड ऑफ f प्रोवाइडेड स्टार इज डिफाइंड, तो ऐसा लिखने में ज्यादा बेटर है। तो np जो है, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो चीज है ये डिफाइन हो गई, दैट मीन्स z प्लस p अगर क्या करता है, बिलोंग करता है उसमें, दैट मीन्स z प्लस np अगर बिलोंग करता है आपकी डोमेन में, तो आप कह सकते हो कि आपका np भी क्या होगा, वो भी पीरियड होगा f का। ठीक है, ऑलराइट। नाउ सेकंड नंबर नोट, तो जैसे मैंने डिफाइन किया कि अगर p कोई पीरियड है किसी फंक्शन f का, तो np भी पीरियड होगा। तो बहुत सारे पीरियड आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना होगा, एक पीरियड फिक्स करना होगा ताकि सभी लोग क्या बोले, उस पीरियड का नाम लेके उस पीरियड को पहचान पाए कि ये वाला वो पीरियड है। तो हमें बात करनी है फंडामेंटल पीरियड के बारे में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, among all the periods, ठीक है, जितने भी पीरियड्स आपके पास हैं, आपको पता है कि हर एक इंटीजर के लिए np एक पीरियड है। सो among all the periods क्या लिखेंगे, a period on upper half plane। अपर हाफ का क्या मतलब है, सो अपर हाफ का मीनिंग मैं यहां पर लिखता हूं, ऑन अपर हाफ प्लेन, दैट इज इमेजिनरी पार्ट जो होता है z का, यहां पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो among all the period, a period on the upper half plane, that is imaginary part of z is greater than 0, the period which is nearest to origin, the period which is nearest to origin will be called as fundamental period। तो आप क्या कर सकते हो, उसे फंडामेंटल पीरियड मान सकते हो कि वो क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड होगा। So among all the periods, a period on the upper half plane, that is imaginary part of z is greater than equal to 0, जो ओरिजिन के सबसे नियरेस्ट होगा वो, उसको हम क्या कह देंगे, फंडामेंटल पीरियड कह देंगे। तो इस तरीके से आपके फंडामेंटल पीरियड को ही हम हमेशा पीरियड कहा जाता है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि कंसीडर दिस फंक्शन, देन दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड इतना, तो जो पीरियड लिखता है हमेशा वो फंडामेंटल पीरियड ही लिखता है, कभी भी वो n टाइम्स मल्टीप्लाई उसको नहीं करेगा। तो अगर मेंशन्ड नहीं है तो आप हमेशा फंडामेंटल पीरियड को ही पीरियड आप अपना मानोगे। ठीक है, ऑलराइट।
तो अब हमें समझना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? e टू द पावर z, राइट। e टू द पावर z को हमने काफी बार यूज भी कर लिया अभी तक, और आप ये भी जानते हो कि e टू द पावर z इज एन एंटायर फंक्शन, दैट मीन्स इट्स डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। बट e टू द पावर z की कुछ और प्रॉपर्टीज भी बाकी हैं, जैसे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और अगर हम e टू द पावर z1 इज इक्वल टू e टू द पावर z2 लिख रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है। तो कुछ कुछ चीजें एक्सपोनेंशियल्स के बारे में सीखना बाकी है, जो कि हम इस सेक्शन में सीखेंगे, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं फंक्शन को एंड देन सीखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे द एक्सपोनेंशियल e टू द पावर z, या तो आप इसे क्या कहोगे, e टू द पावर z कहोगे या exp ऑफ z कहोगे। सो द एक्सपोनेंशियल e टू द पावर z और exp ऑफ z of a complex variable z is equal to x plus iota y is defined as e to the power z is equal to e to the, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं। तो डिफाइन कैसे करते हैं e to the power z को? सो e to the power z का मीनिंग क्या है? e to the power x plus iota y which is equal to e to the power x dot e to the power iota y, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। अब बस ये तो आपको पहले से पता था, बट अब हमें क्या करने हैं, इसके ऊपर कुछ नोट्स पढ़ने। तो नोट नंबर 1 पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये कह दे कि जैसे कि आप पीरियड के बारे में जानना चाह रहे हो, मान लो इसके, तो मैंने क्या कहा, यहां पर पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, देन मैं पीरियड के बारे में। मैंने ऐसा लिखा e टू द पावर z, फिर मैंने यहां पर लिखा 2 आयोटा पाई, या फिर ऐसा लिखते हैं, रुक जाओ, आयोटा 2 पाई। तो मैंने e टू द पावर z लिखा एंड देन मैंने लिखा आयोटा 2 पाई, ठीक है। तो e टू द पावर z प्लस आयोटा 2 पाई। आप इसे कितना लिख सकते हो, ये कितना आएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो ये x प्लस आयोटा y आप इसे लिखोगे। सो x प्लस आयोटा y में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा y प्लस 2 पाई, राइट। सो इट मीन्स कितना आ गया ये? e टू द पावर x e टू द पावर आयोटा y प्लस 2 पाई। नाउ कितना आ जाएगा? e टू द पावर x कॉस ऑफ y प्लस 2 पाई आप लिखोगे। सो मैंने क्या लिखा? y प्लस 2 पाई एंड प्लस में मैंने लिखा आयोटा साइन y प्लस 2 पाई, ठीक है। नाउ ये जो पोर्शन है ये कितना आ जाएगा वापस से? ये वही आ जाएगा, विच इज इक्वल टू e टू द पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y, एंड ये फाइनली e टू द पावर x प्लस e टू द पावर आयोटा y आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस आयोटा y विच इज इक्वल टू e टू द पावर z। दैट मीन्स e टू द पावर z में फंक्शन में आपने आयोटा प्लस आयोटा 2 पाई आपने ऐड किया। सो अगर आप आयोटा 2 पाई इसमें ऐड कर रहे हो तो वो वापस से e टू द पावर z आ रहा है। तो दैट मीन्स इसका पीरियड कितना हो जाएगा? आयोटा 2 पाई या फिर 2 पाई आयोटा, है ना। तो क्या लिखेंगे? नोट ये है कि e टू द पावर z इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, तो पीरियड इसका कितना है? 2 पाई आयोटा है, ठीक है। सो e टू द पावर z इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई आयोटा। अब नोट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। और हाँ, अगर मैं 2 पाई आयोटा को पीरियड कह रहा हूं तो आप 2n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर्स को आप पीरियोडिक कह सकते हो। नोट नंबर 2 ये है एक्सपोनेंशियल्स के बारे में कि एक्सपोनेंशियल जैसे कि रियल एनालिसिस में होता था कि कभी भी जीरो नहीं हो सकते। सेम टू सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी है कि e टू द पावर z इज नॉन जीरो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी ये क्या है? नॉन जीरो है। क्यों है नॉन जीरो? अब देखते हैं। रीजन सिंपली ये है कि e टू द पावर z को मैं लिख सकता हूं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y विच इज इक्वल टू e टू द पावर x और समथिंग। तो मैंने क्या करा? इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। तो यहां पर कितना आएगा? e टू द पावर y आएगा ना, e टू द पावर आयोटा y। तो जब आप मैग्नीट्यूड लोगे वो सेपरेट इस तरीके से हो सकता है, राइट।
ई टू द पावर आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना इसका है, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, सो दैट मीन्स ये कितना आ गया, ई टू द पावर एक्स आ गया, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस में तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता था, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ई टू द पावर जेड इज ऑलवेज नॉन जीरो, क्योंकि ये हमेशा क्या आ रहा है, ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर जेड का जो मॉड्यूलस है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, सो दैट्स वाई ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब नोट नंबर हम 3 लिखेंगे। आपने क्या सीखा था, आपको मैंने ये सिखाया था कि अगर कोई फंक्शन आपके पास, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मान लो u प्लस आयोटा v है, और तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो कितना आएगा, ux प्लस आयोटा vx, है ना। जिस समय हम रीमान इक्वेशंस को लिख रहे थे उस समय हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमने प्रूफ किया था कि ux प्लस आयोटा vx आपका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, दैट मीन्स रियल पार्ट को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो और इमेजिनरी पार्ट को भी x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, वही उसका डेरिवेटिव होता है। नाउ आपके पास फंक्शन कौन सा है, आपके पास फंक्शन है ई टू द पावर जेड, तो मैं लिखूंगा यहां पर नोट कि जो अगर आपने ई टू द पावर जेड का डेरिवेटिव करने की कोशिश करी तो आपको ई टू द पावर जेड ही वापस मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ई टू द पावर जेड होता कितना है, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर आयोटा वाई। नाउ ये कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई टू द पावर एक्स साइन वाई, राइट। नाउ आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो x के रिस्पेक्ट में, और इसका भी डिफरेंशिएशन करके देख लो x के रिस्पेक्ट में, है ना। सो d बाई डी एक्स, इसे मान लो आप u प्लस आयोटा v, आप ये कर लेना d बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी जेड ऑफ, d बाई डी जेड ऑफ ई टू द पावर z कितना आएगा बताओ आपके हिसाब से, ये आएगा ux प्लस आयोटा vx, और ये कितना आ जाएगा, ई टू द पावर x कॉस y प्लस आयोटा ई टू द पावर x साइन y। ठीक है, इतना आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास ई टू द पावर z1 प्लस z2 लिखा है, ई टू द पावर मान लो आप कर रहे हो z1 प्लस z2, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर z1 डॉट z2। तो दैट मीन्स पावर्स जो है अगर बेस सेम है तो प्रोडक्ट एडिशन हो जाता है ना पावर्स का, प्रोडक्ट के टाइम पे बेस सेम होने पर पावर का एडिशन हो जाता है। इस चीज़ को डायरेक्टली प्रूफ किया जा सकता है यूजिंग, आप इसको क्या कर दो, रियल और इमेजनरी में कन्वर्ट कर दो, आप इसको भी क्या कर दो, रियल और इमेजनरी में कन्वर्ट कर दो, और फटाफट से ये हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं इसमें। ठीक है, तो इसको मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ। दूसरा कि अगर इवन आपने क्या कर लिया, बहुत सारे नंबर्स को ऐड कर लिया पावर्स में, तो आप इनको सभी को सेपरेट कर सकते हो, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एक और पार्ट हमें इसमें लिखना है कि इवन आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर क्या आएगा, वही सेम जैसा रियल एनालिसिस में होता है। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, तो एक थ्योरम हमें लिखनी है। थ्योरम सिंपली ये है कि अगर मैंने एक इक्वेशन आपके सामने लिखी, कौन सी इक्वेशन लिखी, द इक्वेशन e टू द पावर z और इक्वल टू मैंने लिखा w, और यहां पर मैंने गिवन आपको दे दिया कि w जो है वो नॉन जीरो है। तो मैं लिखूंगा कि द इक्वेशन e टू द पावर z इज इक्वल टू w, तो क्या लिखूंगा इसके आगे, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके पास क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। दैट मीन्स कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, बस वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपके पास इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। इस बात का मतलब सिंपली ये है कि आपके पास इनफाइनाइटली मैनी z ऐसे एग्जिस्ट करेंगे सच दैट e टू द पावर z करने पर आपको क्या मिल जाए, w मिल जाए। ठीक है, ऑल राइट। तो इसको प्रूफ करते हैं आप, तो लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ सिंपली बहुत ही इजी है। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है, तो आप इसकी क्या लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हो। सो वी कैन राइट दस, वी कैन राइट इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं लिख सकता हूं। क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले तो मैग्नीट्यूड w आएगा एंड देन e टू द पावर आयोटा फाई। व्हाट इज फाई, फाई इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ w, वेयर फाई इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ w।
ठीक है, तो फाई क्या है यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट है डब्लू का, ठीक है। ऑल राइट, नाउ आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो हमने क्या करा, e टू द पावर z के इक्वल टू में w लिखा, और ये w है कितना, ये w है मैग्नीट्यूड w e टू द पावर आयोटा फाई, राइट। अब e टू द पावर z कितना होता है, e टू द पावर z होता है e टू द पावर x, और डॉट में e टू द पावर आयोटा y, और ये कितना लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड w e टू द पावर आयोटा फाई, राइट। ऑल राइट, तो इतना जब हमने कर दिया, इसके आगे हम क्या सोच सकते, हमें क्या पता है, एक मैं यहाँ पर नोट लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा नोट आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ पहले। तो बहुत पहले वीक नंबर 1 में आपको मैंने एक सिखाया था कि R1 अगर e टू द पावर आयोटा थीटा 1 के, यहाँ पर मैं थीटा 1 लिख रहा हूँ और मैंने इसके इक्वेट में करा R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2, ठीक है। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर ऐसा होता है, सो मेरे पास R1 की जो वैल्यू है वो R2 के इक्वल आती है, एंड वहाँ पर जो आपके पास थीटा 1 है और थीटा 2 है उसमें एक फ़र्क आ जाता है। क्या फ़र्क आ जाता है कि जो थीटा 1 है वो थीटा 2 प्लस 2n पाई आता है। दैट मीन्स इवन आपके थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल नहीं भी है और वो 2n पाई के क्या है, डिफरेंस में है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है। नाउ सेम सिचुएशन हमारे सामने यहां पर आ रही है, दैट्स वाई मैं लिखूंगा कि e टू द पावर x जो है वो इसके इक्वल है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 5 प्लस 2n पाई, ठीक है। अब रियल एनालिसिस आपको क्या बताती है कि ये तो रियल फंक्शन है और ये भी रियल नंबर है, तो रियल एनालिसिस आपको बताएगी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, ln w आएगी, राइट। और यहाँ पर y की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ही ली है कि कितनी है, 5 प्लस 2n पाई है। तो और n यहाँ पर इंटीजर्स से है, और आपके पास x और y आ चुके हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, दस z की जो वैल्यू है वो कितनी है, ln w प्लस आयोटा 2n पाई, जो y है आपका वो मैं लिख रहा हूँ इस समय। तो देखो एक तरीके से हमें रियल एनालिसिस में क्या सिखाया जाता था, e टू द पावर x इज इक्वल टू y है, तो x की वैल्यू कितना हम लिख लेते थे डायरेक्टली ln y, राइट। रियल एनालिसिस में e टू द पावर x इज इक्वल टू y का क्या मीनिंग था, x इज इक्वल टू ln y, हम दोनों साइड लॉग ले लेते थे। सेम टू सेम यहाँ पर हम कर सकते हैं, आप दोनों साइड लॉग लोगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा वेराइटी है, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर z की वैल्यू इतनी आती है, ना कि डायरेक्टली ln w आती है, ठीक है। और वैसे बाद में जाके आप पढ़ोगे कि ln w की डेफिनेशन ही हम ये देंगे। हम लॉग को डिफाइन कैसे करेंगे इन फ्यूचर, लॉग को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ऑन बेसिस ऑफ e टू द पावर z, दैट मीन्स दैट इनवर्स ऑफ e टू द पावर z विल एग्जिस्ट, देयरफॉर हम यहाँ पर लॉग को डिफाइन तभी करेंगे जब e टू द पावर z के बारे में, हम इनवर्स के बारे में उसकी बात करेंगे। बात समझ आ गई। तो बाद में हम बोलेंगे कि यही log w है, क्योंकि ये ln mod ऑफ w प्लस आयोटा 2n पाई प्लस 5 लिखा है, बाद में इन फ्यूचर जाके हम इसको log w बोल देंगे, ठीक है। तो ये अपने माइंड में रखना कि इसका सॉल्यूशन एक्चुअली यही आया है। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, मान लो कोई आपसे पूछ रहा है कि फाइंड, तो आपने फाइंड आउट करना था, फाइंड z सच दैट, पहले z लिखता हूं, फाइंड z सच दैट e टू द पावर 2z माइनस 1 जो है आपका 1 प्लस आयोटा के इक्वल है। आपसे z की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। सबसे पहले आप 1 प्लस आयोटा को क्या लिखोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे। तो सबसे पहले आप इसका वो लिखोगे मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस तो √2 है। अब आप e टू द पावर में लिखोगे आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है इसका, π/4 आ रहा है, ठीक है। करके देख लेना, π/4 ही इसका आर्ग्यूमेंट आएगा। नाउ हमें क्या पता चलेगा, फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम हमें पता चला कि 2z माइनस 1 की जो वैल्यू है वो ln ऑफ w, ये आपका w है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं, क्वेश्चन सेपरेट नहीं हो पा रहा है। ये आपका कितना है, ओहो 1 सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो क्वेश्चन ये आपके पास था, तो ये आपका w है, दिस इज योर w। तो आपने इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ln √2 यहाँ पर आपके सामने आएगा। नाउ देन आपको क्या पता है, आयोटा आपको लिखना है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है,
जो इसका आर्गुमेंट है π/4, उसमें बस आपको 2n पाई ऐड कर देना है। तो ये इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1 + ln√2 प्लस आयोटा π/4 + 2n पाई एंड देन होल के अपॉन में 2। तो इसके अपॉन में भी 2 लिख दिया, इसके अपॉन में भी 2 लिख दिया। सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब हम डिफाइन करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे रियल एनालिसिस में डिफाइन किए जाते हैं, तो आपको बोला जाता है कि अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, cos x की वैल्यू चाहिए, तो आप वहां पर यूज करते थे उस फॉर्मूले का, कौन सा, जो डी मोइवियर थ्योरम के रूप में आपको कराया गया था। तो e⁻iota x कितना होता था, cos x + iota sin x होता था, राइट। तो वहां से आप ट्वाइस वगैरह ऐड कर करके cos x की वैल्यू निकाल लेते थे कि cos x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, e⁻iota x + e⁻iota x/2। एंड सिमिलरली साइन की वैल्यू ऐसी एडिशन सब्ट्रैक्शन से कैलकुलेट हो जाती थी। तो उसी फॉर्मेट से यहां पर भी हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे कि साइन z जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, ऐसा चीज़ नहीं है कि मुश्किल है, वही सेम टू सेम मैं दोबारा से डिफाइन कर रहा हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। तो लिखेंगे कि द फंक्शन साइन एंड कोसाइन, ठीक है, द फंक्शन साइन एंड कोसाइन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z are defined by। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे कि जो साइन z है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। देखो जैसे कॉम्प्लेक्स उसमें करते थे, सेम टू सेम वैसी काम है यहाँ पर भी, e⁻iota z e⁻iota z over 2 iota। और cos z को आप कैसे डिफाइन करोगे, e⁻iota z + e⁻iota z/2। ठीक है, तो ये है साइन z और ये है cos z। इस तरीके से हम इन दोनों फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है इनसे, ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट आप ऐसे ही देख लोगे। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हमें इसके ऊपर नोट्स लिखने हैं। तो नोट क्या है, पहला नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 बिल्कुल ही सिंपल है। देखो आपने क्या सीखा था, e⁻z इज एन एंटायर फंक्शन, राइट। तो e⁻z को आप जानते हो एंटायर है। अगर आप इसकी पावर में आयोटा लिख दे रहे हो तो उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है एंटायर पे कि फंक्शन एनालिटिक नहीं आएगा अब। सो e⁻z एंड ये बोथ दोनों के दोनों क्या है, एंटायर फंक्शंस है। इसी बेसिस पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि साइन z एंड cos z आर entire। sin z and cos z are entire functions because e⁻iota z and e⁻iota z both are entire। ठीक है, इसीलिए उसे हम डायरेक्टली एंटायर कह दे रहे हैं कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये क्या है, वो है, क्या कहते हैं उसे, डिफरेंशिएबल है। नाउ सेकेंड पॉइंट, अब हमें बात करनी है डिफरेंशिएशन की कि साइन z का डेरिवेटिव क्या होगा। क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव जानते हो, है ना, इसके डेरिवेटिव जानने की वजह से डायरेक्टली मैं कह दूंगा कि साइन z का डेरिवेटिव भी मुझे पता है। ठीक है, तो साइन z का जब आप यहां पर करोगे डेरिवेटिव, इसी की हेल्प से आप करना, इसी की हेल्प से अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो साइन z का जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, cos z। करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद रख लो, साइन z का डेरिवेटिव cos z और cos z का माइनस साइन z। ठीक है, माइनस साइन z डायरेक्टली याद रख लो, इन्हीं से कैलकुलेट होके ये चीज निकल आएगी कि साइन z का डेरिवेटिव cos z एंड cos z का डेरिवेटिव साइन z। गॉट इट, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर नोट क्या होगा। नाउ इस डेफिनेशन के बेसिस पर जो ये मैंने लिखा है कि साइन z की वैल्यू इतनी, cos z की वैल्यू इतनी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करा दूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अगर मैं कर दूं, तो इक्वेशंस को ऐड मैं कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, यहां पर मैं यहां पर लिखता हूं डायरेक्टली, इसे मान लो स्टार। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि e⁻iota z जो है वो किसके इक्वल आएगा, e⁻iota z इज इक्वल टू cos z प्लस iota sin z।
तो cos z में अगर आप क्या करोगे, sin z को ऐड करोगे आयोटा टाइम्स, तो आपको e टू द पावर z मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम स्टार, ये ओबियस है, डायरेक्टली देख के हमें पता चल रहा है। ठीक है, फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर पे हमें ये लिखना है कि साइन z और cos z क्या है, पीरियोडिक है। कैसे हैं पीरियोडिक, वो हमें सोचना होगा। तो जैसे कि इस तरीके से आप इसको सोचोगे कि आपने साइन z इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा z, जैसे साइन के बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, तो आपने इसको देखा एंड देन आपने पीछे चल के पीरियोडिक बिहेवियर देखा। किस फंक्शन का पीरियोडिक बिहेवियर आपने देखा, इसका कहाँ पर था वो, यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ई टू द पावर z का पीरियोडिक बिहेवियर देखा कि अगर आप उसमें 2 पाई आयोटा ऐड करते हो तो हमें क्या मिल जाएगा, पीरियोडिक बिहेवियर उसका मिल जाएगा। नाउ क्योंकि यहां पर ई टू द पावर आयोटा z ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहां पर आयोटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे कि मैं क्या कर रहा था, ई टू द पावर z में 2 पाई आयोटा ऐड कर रहा था तो मुझे ई टू द पावर z मिल रहा था। नाउ यहां पर ई टू द पावर z पहले से, ई टू द पावर आयोटा पहले से ही है, तो जब आप z प्लस 2 पाई सिर्फ करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, ई टू द पावर z ही मिलेगा। बात समझ आ गई। तो 2 पाई के साथ आयोटा इसकी वजह से अपने आप आ रहा है। तो यहां पर जो साइन z और cos z है उनके मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि पीरियड कितना है, 2 पाई है। ठीक है, साइन z एंड cos z आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड 2 पाई। ठीक है, तो e टू द पावर z जो था वो 2 पाई आयोटा पीरियड रखता था, बट क्योंकि आयोटा इसमें पहले से ही मल्टीप्लाइड है तो जब आप सिर्फ 2 पाई लिखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। दैट मीन्स तो साइन z एंड cos z आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। गॉट इट। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इस बात पे डिपेंडेंट है, जैसे कि आपने साइन z की डेफिनेशन लिखी e टू द पावर आयोटा z माइनस टाइम्स ऑफ e टू द पावर आयोटा z अपॉन 2i, राइट। अगर मैं इसमें क्या कर लूं, जैसे z की जगह मैंने लिखा 0 प्लस आयोटा y, सो z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई कैन पुट इट 0 प्लस आयोटा y। सपोज आई एम पुटिंग इट 0 प्लस आयोटा y, देन व्हाट विल हैपन इज यहां पर आ जाएगा आयोटा टाइम्स आयोटा y, सो आयोटा टाइम्स आयोटा y विल बी e टू द पावर माइनस y। देन यहां पर कितना आएगा, माइनस, यहां पर क्या आएगा, e टू द पावर आयोटा टाइम्स ऑफ आयोटा y, तो ये कितना आ जाएगा इस बार प्लस y, सो e टू द पावर माइनस y माइनस टाइम्स ऑफ e टू द पावर y अपॉन 2 आयोटा। तो ये एक ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे कि साइन हाइपरबॉलिक्स वगैरह हमने पढ़े थे, है ना। साइन हाइपरबॉलिक की वैल्यू क्या होती है, जैसे यहां पर मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा, तो जो रियल एनालिसिस का साइन हाइपरबॉलिक है वो डायरेक्टली इसके थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है व्हेन यू आर पुटिंग z इज इक्वल टू आयोटा y, मींस रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज y। ठीक है, तो रियल एनालिसिस वाला हाइपरबॉलिक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं 5th नंबर प्रॉपर्टी में यही करने वाला हूं, तो करते हैं। तो जैसे मैंने क्या करा, यहां पर पहले मैं यहां पर वो लिखता हूं, जैसे साइन के अंदर मैंने क्या लिखा, 0 प्लस आयोटा y लिखा, तो आपके पास e टू द पावर माइनस y आएगा। ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा विल बी -1, देन आपके पास माइनस टाइम्स ऑफ e टू द पावर y अपॉन 2 आयोटा। अगर आप साइन हाइपरबॉलिक y की वैल्यू रफ में सोचोगे कि आनी कितनी चाहिए, तो जो साइन हाइपरबॉलिक y की वैल्यू होती है वो होती है e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2, राइट। अब देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है, बस हमें क्या कराना है, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। अगर आप आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे, सॉरी हाँ ठीक है मैं सही बोल रहा हूँ, आयोटा से अगर हम देखेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, e टू द पावर y माइनस का मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कराया तो साइन तो मेरा रिवर्स हो रहा है, मतलब कि आयोटा से मल्टीप्लाई कराने से ये प्लस आ जाएगा, बट एक आयोटा आएगा, राइट। उस आयोटा का हम कैसे हैंडल करेंगे, कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, दैट मीन्स देखते हैं पीछे, 0 प्लस आयोटा नहीं, हाँ ठीक है करेक्ट है, मैं गलत सोच रहा था। तो जैसे मैंने ये लिखा तो मैं इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा के ऐसा लिख सकता हूँ, आयोटा मैंने बाहर लिखा और नीचे वाले माइनस को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये इतना आएगा या नहीं आएगा। इट मीन्स कि यहां से मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं कि जो साइन ऑफ आयोटा y होगा वो कितना आएगा, वो आएगा आयोटा साइन हाइपरबॉलिक y। तो यहां पर आप लिखोगे सिंस साइन हाइपरबॉलिक y इज दिस, देयरफॉर यहां पर कितना आ गया, ये
साइन आयोटा वाई विल बी गिवन बाय आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक वाई। सो अब सब कुछ करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं साइन आयोटा वाई को लिख सकता हूं साइन हाइपरबोलिक वाई। सिमिलरली कॉस के लिए भी मैं यही प्रॉपर्टी लिख सकता हूं। तो जैसे अगर मैं क्या करूं, कॉस के अंदर आयोटा वाई लिख दूं तो क्या फर्क आएगा, देखो सॉरी हाँ ऊपर यहां लिखना चाहिए मुझे अलग से, तो इसे मैं एज अ प्रॉपर्टी यहां पर लिखता हूं, ठीक है। अब कॉस के अंदर आयोटा वाई अगर आप लिखोगे तो आपके पास फ्रॉम द फंक्शन फ्रॉम द डेफिनेशन ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई, राइट। ये हो जाएगा e टू द पावर वाई अपॉन 2। सो e टू द पावर माइनस वाई प्लस e टू द पावर, यहां पर माइनस वाई आना चाहिए बट एक और माइनस वहां पर पहले से था, तो e टू द पावर वाई अपॉन 2। इट मीन्स कि इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा सिंस cos hyperbolic y is given by cos y e to the power minus y upon 2। इससे दिया जाता है इसका फॉर्मूला। सो इट मीन्स, इसको ढंग से लिखता हूं, सो इट मीन्स cos iota y द वैल्यू विल बी cos hyperbolic y, ठीक है। इन दो फॉर्मूलों को हमने अपने दिमाग में रख लिया। नाउ आगे मूव करेंगे। तो जो डेफिनेशन है बेसिक सी कि साइन z की वैल्यू क्या है, cos z की वैल्यू क्या है, वो उस डेफिनेशन के बेसिस पर आपको भी ये डायरेक्टली याद रख लेना है कि अगर आपने क्या लिखा π/2 प्लस z लिखा तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये कितना आएगा, cos z आएगा। अगर आप cos π/2 प्लस z लिखोगे तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि ये कितना आएगा, माइनस में sin z आएगा, ठीक है। जैसे सिंपल रियल एनालिसिस में होता है ऐसा ही हो जाएगा। तो ये इसे इजीली देखा जा सकता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। नाउ सेम काम हम किसके साथ करेंगे, पाई के साथ यहां पर करते हैं। तो साइन अगर आप लिखोगे पाई प्लस जेड तो आपका आंसर आएगा माइनस साइन जेड। जैसे कि रियल एनालिसिस में कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता था, थर्ड। तो अब यहां पर कॉस के लिए लिखेंगे, सो कॉस ऑफ पाई प्लस जेड विल बी माइनस कॉस जेड, ठीक है। अब अगर आपने क्या करा, साइन जेड के ऊपर कंजुगेट लगाया तो आप इसे कह सकते हो कि ये साइन ऑफ जेड बार के ऊपर कंजुगेट है, ठीक है। कैसे, डेफिनेशन आप देख लो, जो ये डेफिनेशन है इसी के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपको भी डायरेक्टली याद रखना है, ऐसा कुछ सोचने की बार बार जरूरत नहीं है कि वहां से कंक्लूड हम कर रहे हैं। दूसरा, कॉस जेड के ऊपर फिर से बार लगाया तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ जेड बार आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी जो है वो डेफिनेशन से ही आपकी कैलकुलेट होगी और उसमें हम पढ़ेंगे कि साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा। तो जैसे कि मैंने क्या लिखा, सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी, सो मैंने ये लिख, सेवेंथ थी एट थी, सेवेंथ थी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा दोनों का फॉर्मूला। तो मैं लिखूंगा जैसे कि साइन ऑफ, मैंने लिखा z1 प्लस z2। तो जैसा रियल एनालिसिस में काम होता था एज इट इज आप काम यहां पर कर सकते हो। तो यहां पर होता है साइन z cos z2। आपको इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको इसे डायरेक्टली याद रखना है। प्रूफ करोगे तो टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा, एक ही सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लग जाएगा। माइनस के साथ यहां पर बस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसे डायरेक्टली याद करना है जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये रियल एनालिसिस के ही एनालॉगस यहां पर हम काम कर रहे हैं। सो z1 प्लस माइनस z2 अगर है तो मेरे पास आएगा cos ऑफ z1 cos ऑफ z2 माइनस साइन ऑफ z1 साइन ऑफ z2। अब जैसे माइनस है तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, प्लस, क्योंकि रियल एनालिसिस में भी सेम टू सेम चीजें होती हैं, ठीक है। एट्थ प्रॉपर्टी हम लिखेंगे साइन उसके बारे में, वो भी यहां से प्रूफ की जा सकती है। जैसे कि आपने साइन 2z का फॉर्मूला लिखा, सो साइन 2z का फॉर्मूला आप वहां पर जानते थे कि 2 sin x cos x होता है। तो उसी तरीके से यहां पर भी 2 sin z cos z होता है, ठीक है। आपको याद करना है डायरेक्टली। नाउ अगर आपसे कोई पूछेगा कि cos 2z का क्या होगा, तो सेम टू सेम प्रॉपर्टी फॉलो होगी। cos 2z का फॉर्मूला भी cos स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर z होता है, ठीक है। और एक और चीज कि साइन स्क्वायर z प्लस cos स्क्वायर z इज 1। तीनों का सम जो है, सॉरी दोनों का सम जो है यहां पर भी 1 ही आता है, ठीक है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में लिखने जा रहा हूं 9th पे कि हम साइन ऑफ z को एक्सपेंड कैसे करते हैं रियल की टर्म्स में। तो जैसे आप साइन ऑफ z लिखोगे तो होता क्या है, ये साइन ऑफ x प्लस आयोटा y, राइट।
साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई आया तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स, यहां पर आएगा कॉस आयोटा वाई, फिर आएगा यहां पर कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ आयोटा वाई। आप क्या जानते हो, आप जानते हो साइन आयोटा वाई जो होता है वो आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई के इक्वल होता है, और कॉस ऑफ आयोटा वाई कॉस हाइपरबोलिक वाई के इक्वल होता है। इट मीन्स मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, बट यहां पर आयोटा टाइम्स लिखना पड़ेगा, आयोटा टाइम्स कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, नाउ इसको आपने अपने दिमाग में रखा। अब मैं क्या करूंगा, साइन जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखूंगा। तो साइन जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, आप देखो, दिस थिंग इज रियल, दिस थिंग इज ऑल्सो रियल, सो योर फंक्शन साइन जेड इज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी, राइट, इट इज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। देयरफॉर आपके पास साइन जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, राइट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। तो इतना हमारे पास आ गया। अब साइन स्क्वायर एक्स, देखो आपको हाइपरबोलिक के बीच में रिलेशन तो नहीं पता होगा, बट मैं एक यहां पर लिख लेता हूं नोट। नोट ये है कि जिस तरीके से हमारे पास हमें क्या मालूम होता है, हमें मालूम होता है कि साइन स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, उसी तरीके से हाइपरबोलिक की टर्म्स में ये माइनस आ जाता है बस यहां पर, कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई एक्स लिखूंगा माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स यहां पर रियल से है, एक्स जो है वो रियल का पार्ट है, तो वहां पर ये रिलेशन होल्ड करता है कि यहां पर बीच में बस माइनस आ जाता है। ठीक है, तो नाउ मैंने क्या करा, इसमें ये जो मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता था, इसमें साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता था। तो मेरे पास आएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा और कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूंगा। सो कॉस स्क्वायर एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स यहां पर आएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, नहीं पहले साइन लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब मैंने आपको क्या बताया, इफ इट्स अ रियल नंबर देन दिस थिंग विल बी 1। तो आपके पास साइन जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आया, कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस, 1 सेकेंड मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, मेरे हिसाब से ये फॉर्मूले में शायद यहां पर पहले कॉस आता है, मैं 1 सेकेंड चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं करेक्ट था, यहां पर मैंने मिस्टेक कर दी है, ये उल्टा होता है, कॉस से साइन को माइनस कराना होता है हाइपरबोलिक्स में। ठीक है, ये गलती है इसमें। सो कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक इतना होता है, राइट, सो उल्टा होता है। ठीक है, याद रखना। नाउ सपोज यू नो दिस, इट मीन्स कि ये जो लिखा है मैंने इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो यहां पर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। सो साइन जेड के जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा फाइनली, कॉस। तो ये आपका रिजल्ट रहेगा कि ये आपका क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, तो इतना रिड्यूस हम इसको कर सकते हैं। नाउ मैंने साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखा, जरूरी नहीं है ऐसा हम करें, हम हो सकता है यहां पर से 1 माइनस वो करते, है ना, यहां पर से मैं क्या लिखता, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखता। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखता तो यही जो रिजल्ट है यही मेरे पास क्या आ जाता कि साइन जेड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। वैसे ये इससे ही कैलकुलेट होके आ रहा है, ये जो हमने लिखा इसी से चीजें आ रही हैं, बट इसी के बेसिस पर मैं यहां पर बोलने वाला हूं कि जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑन रियल एनालिसिस बाउंडेड होते हैं, ऐसा यहां पर नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बाउंडेड हों ऐसा जरूरी नहीं है। बाउंडेड, अगर आपके पास डोमेन अनबाउंडेड है तो वो अनबाउंडेड हो जाएंगे। देखो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो मैंने ये 2 फॉर्मूले लिख दिए। अब इसी के बेसिस पर मैं कॉस का भी डायरेक्टली फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं। जैसे कि आपने साइन जेड की वैल्यू लिखी, चलो नेक्स्ट उसमें करते हैं, 10th नंबर प्रॉपर्टी में इस चीज को लिखते हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट नॉलेज जो आपने वहां पर सीखी, उसी नॉलेज के बेसिस पर सेम टू सेम मैं यहां पर कॉस के साथ वर्क करूंगा और कॉस की जो वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा। तो कॉस जेड के जो मैग्नीट्यूड होता है अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो यह आता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। और
वही जो मैंने वहां पर करा cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, वैसा ही कुछ चेंज करने से इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। ठीक है, अब हम क्या आएंगे, अब हम बाउंडेडनेस के ऊपर आएंगे कि कौन सी चीज बाउंडेड है कौन सी चीज अनबाउंडेड है। उस बारे के लिए हमने 11th नंबर प्रॉपर्टी को लिखा। तो 11th प्रॉपर्टी में आप देखो, आप यहां पर वर्क कर रहे थे, तो जब आप यहां पर वर्क कर रहे थे तो साइन जेड का जो मैग्नीट्यूड था उसका स्क्वायर जो आपने कैलकुलेट किया वो इतना कैलकुलेट किया, आपने साथ साथ में ये फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया। नाउ दो चीजों के स्क्वायर से मिलकर ये आपका बन रहा है, इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, ये आपको मिल रहा है। इट मीन्स कि ये इंडिविजुअली तो इससे छोटे ही होंगे, तो मैं इंडिविजुअली यहां पर नेक्स्ट टाइम पे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख लेता हूं प्रॉपर्टी 9, ठीक है, इसको प्रॉपर्टी 9 में कहूंगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम प्रॉपर्टी 9, 9th प्रॉपर्टी से मैं ऐसा कह सकता हूं कि साइन हाइपरबॉलिक y जो होगा वो साइन z से छोटा होगा, मैग्नीट्यूड से, सॉरी, उसके। सिमिलरली यहां पर आप देखोगे इसका जो स्क्वायर मैंने किया है ये इसके स्क्वायर में से कुछ घटाने पर मिल रहा है, और घटा भी आप क्या रहे हो, पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस कर रहे हो। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस करने से मुझे, सॉरी, इस स्क्वायर में से इसके पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस करने से मुझे मिल रहा है साइन जेड का स्क्वायर। इट मीन्स कि ये जो स्क्वायर होगा इसके स्क्वायर से तो छोटा ही है, राइट। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, इसे यहां पर लिख सकता हूं कॉस हाइपरबॉलिक y, ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्या कर सकता हूं, प्रॉपर्टी 10 से, फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 10, और इन पे साइन हाइपरबॉलिक वगैरह पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है ऑलरेडी। तो देखो इस पे, सॉरी, कॉस हाइपरबॉलिक y पे, नाउ कॉस हाइपरबॉलिक y पॉजिटिव है, ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। अब लेकिन मैं इसको देखूंगा तो इंडिविजुअली मुझे पता चल जाएगा कि साइन हाइपरबॉलिक y जो होता है वो छोटा होता है कॉस जेड से, कॉस जेड के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि इसके स्क्वायर में कुछ और ऐड करने के बाद इसका स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मैंने इसको 0 रख दिया तो ये तो छोटा ही आएगा फिर। अब नाउ सिमिलरली ये कॉस हाइपरबॉलिक y से भी क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, राइट। सो फाइनली हमारे पास ये दो रिजल्ट आ चुके हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए साइन हाइपरबॉलिक y की वैल्यू को देखो जरा, कहां पर लिखी थी मैंने, अभी भी लिखी थी आपके सामने। तो साइन हाइपरबॉलिक y जो था वो कितना था, e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2, राइट। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, y को इंफिनिटी की तरफ भेजता हूं तो ये पोर्शन तो 0 की तरफ जाएगा, बट ये पोर्शन किसकी तरफ चला जाएगा, इंफिनिटी की तरफ। अगर मैं y को इंफिनिटी की तरफ भेजता हूं तो ये पोर्शन 0 की तरफ जाएगा और ये पोर्शन इंफिनिटी की तरफ। दैट मीन्स साइन हाइपरबॉलिक y इज एन अनबाउंडेड फंक्शन, है ना। और दोनों जो चीजें हैं जो हमने यहां पर प्रूफ करी हैं, साइन जेड का मैग्नीट्यूड और कॉस जेड का मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है। नाउ लिखेंगे सिंस साइन हाइपरबॉलिक y इज एन अनबाउंडेड फंक्शन, ये तो क्या है, अनबाउंडेड फंक्शन है। Therefore, sin z and cos z both are unbounded। तो दोनों के दोनों फंक्शंस अनबाउंडेड है। इट मीन्स कि यहां पर जो हम काम कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, इसमें जो साइन और कॉस हैं वो डिफर करते हैं बाउंडेडनेस से। ऑलमोस्ट बाकी प्रॉपर्टीज हमने देखी कि सेम है, बट बाउंडेडनेस में फर्क है। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि साइन एंड कॉस आर अनबाउंडेड फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। जैसे कि आप साइन और कॉस के जीरोस के बारे में तो जानते ही हो, है ना। कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप जानते हो कि कहां पर साइन 0 हो रहा है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, रियल प्लेन में। सो रियल एक्सिस पर तो आप जानते हो कि साइन कहां कहां पर 0 हो सकता है। सिमिलरली आप जानते हो कि कॉस कहां कहां पर 0 हो सकता है, राइट। साइन और कॉस के बारे में आप पहले से जानते हो। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर उसके लिए लिखूंगा रिजल्ट, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए। बट बाद में जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो कॉम्प्लेक्स वाला रिजल्ट है वो सेम टू सेम है रियल एनालिसिस जैसा। तो हमें याद करने के लिए स्पेशल चीज की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली, अगर हमें रियल एनालिसिस का रिजल्ट याद है कि कब साइन 0 होता है, उसी चीज पर कॉस भी क्या हो जाए, सॉरी उसी चीज पर कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी क्या हो जाएगा, साइन और कॉस 0 होंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, तो लिखेंगे जीरोस ऑफ
साइन एक्स, सॉरी साइन जेड, जीरोज ऑफ साइन जेड एंड कॉस जेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरोज के ऊपर। तो कैसे मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैंने लिखा साइन जेड इज इक्वल टू जीरो, पहला रूल नंबर 1। तो रूल यह है कि साइन जेड जीरो कब होता है, दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ आपके पास जेड की वैल्यू जो हो एन पाई हो, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये है रूल। अब हमें सोचना है कि ऐसा क्यों। ठीक है, अब हमें क्या सोचना है कि साइन जेड क्यों जीरो है इस पर। तो आपने पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि जो साइन जेड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका जो स्क्वायर अगर आप करते हो तो कितना आता है उसका स्क्वायर। यहां पर अभी अभी आपने प्रूफ किया था, तो ये रहा। तो मैं इसका यूज कर लेता हूं। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, राइट। तो आप जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। नाउ आप ये सोचो कि साइन हाइपरबोलिक कब जीरो हो सकता है। साइन हाइपरबोलिक अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही बार जीरो हो पाएगा इस पर, देखो सॉरी ये नहीं, ये रहा। तो अगर आप देखोगे y की जगह अगर मैंने जीरो रखा तो ही जाके ये जीरो होगा, अदरवाइज ये हमेशा नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक y इज जीरो ओनली इफ y इज जीरो। नेक्स्ट पेज में तो क्या लिखेंगे, नाउ सिंस साइन हाइपरबोलिक y is 0 if and only if y is 0 and sin x is 0 if and only if x is n pi, this imply, देखो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम हमारे सामने है। अगर आपको दो पॉजिटिव नंबर्स के सम को जीरो करना होता है तो उनको इटसेल्फ जीरो होना पड़ता है। सॉरी, नॉन नेगेटिव वर्ड यूज करूंगा। दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम हमारे पास है, अगर मुझे इसे जीरो करना है तो इटसेल्फ नंबर्स को जीरो होना होगा। सो इट इंप्लाई कि साइन जेड का स्क्वायर जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज एन पाई एंड वाई इज जीरो। सो साइन जेड इज जीरो इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू, स्क्वायर हटा देता हूं यहां से क्योंकि साइन जेड जीरो है तो स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा उसका। सो इफ एंड ओनली इफ इट इज एन पाई प्लस आयोटा जीरो, राइट। तो फाइनली मैंने प्रूफ कर दिया। देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जीरो तभी होता है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद जीरो हो, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसका मॉड्यूलस भी जीरो आता है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहां से कह सकता हूं कि साइन जेड इज जीरो इफ एंड ओनली इफ जेड इज एन पाई। तो आज से आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि साइन जेड जीरो तभी होता है जब जेड इज इक्वल टू एन पाई हो, और साइन एक्स के भी यही रूट्स होते थे। जब आप रियल एनालिसिस में इस साइन एक्स को पढ़ते थे तो उसमें भी यही रूट होता था। गॉट इट? ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉस जेड कब कब जीरो हो सकता है। तो कॉस जेड के लिए भी मैं सेम टू सेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो पीछे चल के आप देखोगे तो कॉस जेड के लिए क्या लिखा है आपके पास, ये रहा, नहीं ये नहीं, कहां पर है, सो नेक्स्ट पेज में था शायद। ठीक है, ये रहा। तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। चलो, तो देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, राइट। तो रिजल्ट तो मैं यहां पर लिखूंगा, बट ऐसा आप सोचोगे कि कॉस जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होता है। कॉस जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, विच इज जीरो इफ एंड ओनली इफ ये चीज जीरो हो और ये वाली चीज जीरो हो। इट मीन्स कि x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 2n-1 π/2, राइट, और y को क्या होना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि ये तभी साइन हाइपरबोलिक y के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये तभी जीरो हो सकता है जब y जीरो हो, राइट, ये रहा। और cos x कब जीरो होता है, जब x की वैल्यू 2n-1 π/2 हो। तो यहां से डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि cos z इज जीरो इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 2n-1 π/2 n बिलोंग्स टू z। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि अलग सा रिजल्ट हमें दिखाई दे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको हाईलाइट कर दूंगा कि ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, तो हमने जीरोज ऑफ साइन जेड एंड कॉस जेड पढ़ लिए। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है हाइपरबोलिक फंक्शंस को हमें पढ़ना है।
हाइपरबॉलिक फंक्शंस भी उसी तरीके से डिफाइन किए जाते हैं जैसे रियल एनालिसिस में हाइपरबॉलिक फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो हाइपरबॉलिक फंक्शंस की जो वैल्यूज है वो एग्जैक्टली हूबहू मैच करेंगी कॉम्प्लेक्स वाले वर्जन से, ठीक है। तो देखते हैं, सॉरी रियल वाले वर्जन से। तो लिखेंगे ये कि द हाइपरबॉलिक ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो क्या लिखेंगे, द हाइपरबॉलिक ऑफ साइन एंड कोसाइन, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z आर डिफाइंड बाय, तो कैसे डिफाइन करते हैं, साइन हाइपरबॉलिक z इज इक्वल टू ई टू द पावर z माइनस ई टू द पावर माइनस z अपॉन 2। कॉस हाइपरबॉलिक z को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ई टू द पावर z प्लस ई टू द पावर माइनस z अपॉन 2, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शंस इस तरीके से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफाइन किए जाते हैं, जैसा कि सेम टू सेम आप देखोगे कि ये फंक्शन वैसा ही है जैसे रियल एनालिसिस में थे। अब इस तरीके से आप सोचोगे कि ये तो बस एक लीनियर कॉम्बिनेशन है इनका, है ना, ई टू द पावर z का और ई टू द पावर z तो एंटायर फंक्शंस हैं। Therefore sin and cos are also, sin hyperbolic z and cos hyperbolic z are entire function। तो नोट नंबर 1 क्या है, यहां पर लिखता हूं नोट। सो नोट नंबर 1 ये है कि साइन एंड कोसाइन हाइपरबॉलिक्स आर एंटायर फंक्शन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबॉलिक z एंड cos hyperbolic z both are entire functions। तो दोनों के दोनों एंटायर है क्योंकि e to the power z एंटायर होता है। सेकेंड नंबर नोट, वही सेम टू सेम कि डेरिवेटिव्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आप देखोगे इसका डेरिवेटिव करोगे ये बगल वाला आ जाएगा, है ना। तो देखो मतलब इनका डेरिवेटिव करना है, क्योंकि आपको e टू द पावर z का डेरिवेटिव मालूम है, इसी वजह से मैं क्या कर सकता हूं, इसके डेरिवेटिव्स को लिख सकता हूं। तो मुझे यहां से पता चलेगा कि d बाई डी जेड ऑफ साइन हाइपरबॉलिक z जो होता है वो क्या आता है, कॉस हाइपरबॉलिक z आता है। एंड d बाई डी जेड ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक z अगर आपने किया तो आपको मिलेगा साइन हाइपरबॉलिक z, ठीक है। इतना हो गया। नाउ हम थर्ड नंबर प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे, इसके पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो देखो हमने सबसे पहले e टू द पावर z का पीरियड जाना आज, तो e टू द पावर z के टाइम पे, पीरियड के टाइम पे मैंने क्या लिखा था, कहां लिखा था, ये रहा। सो हमने देखा कि आयोटा 2 पाई इज पीरियड ऑफ e टू द पावर z, राइट। नाउ यहां पर आ जाओ वापस, यहां पर भी एग्जैक्टली वही होने वाला है, क्योंकि साइन हाइपरबॉलिक z का पीरियड इसी पर तो डिपेंडेंट है। तो अगर e टू द पावर z अगर आपका पीरियोडिक हो गया तो ये अपने आप पीरियोडिक हो जाएगा, जबकि साइन और कॉस फंक्शन के टाइम पे ऐसा नहीं था। साइन और कॉस फंक्शंस को जब आपने डिफाइन किया था उस वक्त ऐसी चीज नहीं थी आपके पास, क्योंकि आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे थे। आयोटा से मल्टीप्लाई कराने की वजह से इसके पीरियड में फर्क आ गया था आयोटा का, बट साइन और कॉस हाइपरबॉलिक में कोई फर्क नहीं आएगा, इसका पीरियड 2 पाई आयोटा ही होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये कि साइन हाइपरबॉलिक z एंड कॉस हाइपरबॉलिक z आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई आयोटा। सो साइन हाइपरबॉलिक z एंड कॉस हाइपरबॉलिक z आर पीरियोडिक functions with period 2 pi iota। So 2 pi iota will be the period। Now इस इक्वेशन को मैं मार्क करूंगा एज स्टार। तो अगर स्टार इक्वेशन में आप जो z है उसकी जगह आयोटा y सपोज रख दो, तो अगर मैं z की जगह आयोटा y रख लेता हूं तो मुझे आप देखना आपको साइन y वापस से मिल जाएगा, मतलब आयोटा टाइम्स कुछ मिलेगा साइन y। तो डायरेक्टली मैं यहां पर नोट में लिख रहा हूं कि जैसे साइन हाइपरबॉलिक आपके पास y था, ठीक है, सॉरी साइन हाइपरबॉलिक आपके पास z था, अगर आप उसके अंदर आयोटा y प्लेस करते हो, अगर आपने उसके अंदर क्या लिखा आयोटा y, तो आपको कितना मिलेगा, आयोटा टाइम्स साइन y मिलेगा, ठीक है। और कॉस हाइपरबॉलिक
के अंदर अगर आपने आयोटा वाई रखा तो आपको कॉस वाई मिल जाएगा। यही सेम टू सेम काम आपने ट्रिगोनोमेट्री में भी किया था। तो ट्रिगोनोमेट्री में अगर आप देखोगे कहाँ पर किया था ये काम, इससे पहले वाले पेज पे। तो देखो आपने कहा साइन आयोटा वाई इज आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई, तो वैसा ही सेम काम हम यहां पर भी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने किया नाउ इतना हमारे पास एज अ रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिफ्थ नंबर चीज हम लिखेंगे, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी आपके लिए। तो प्रॉपर्टी बस उसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, जो आपने साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले के लिए हमें वर्क करना है। तो जैसे हमारे पास लिखा होगा साइन हाइपरबॉलिक और मान लो लिखा हुआ है z1 प्लस z2, तो आप इसे लिख सकते हो साइन हाइपरबॉलिक z1 कॉस हाइपरबॉलिक z2 प्लस माइनस कॉस हाइपरबॉलिक z1 साइन हाइपरबॉलिक z2। ठीक है, अगर आपके सामने कॉस हाइपरबॉलिक z1 प्लस माइनस z2 लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, कॉस हाइपरबॉलिक z1 कॉस हाइपरबॉलिक z2 प्लस माइनस साइन हाइपरबॉलिक z1 साइन हाइपरबॉलिक z2, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। नाउ सिक्स नंबर रिजल्ट को हम लिखेंगे जो कि डील करेगा जीरोस के साथ, कि साइन हाइपरबॉलिक के जीरोस क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा जीरोस ऑफ साइन हाइपरबॉलिक z एंड कॉस हाइपरबॉलिक z। ठीक है, ऑल राइट। चलो इस प्रॉपर्टी से पहले एक और प्रॉपर्टी हमें लिखनी चाहिए शायद, तो वो प्रॉपर्टी बस यही है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, यहां पर लिखेंगे। तो सिक्स नंबर प्रॉपर्टी में चेंज कर रहा हूं, तो सिक्स नंबर प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगा ऑल राइट कि अगर आपने साइन हाइपरबॉलिक लिखा, ठीक है, और यहां पर आयोटा z कर दिया और बस एक माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करा दिया, तो स्टार इक्वेशन जो आपकी है उससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये साइन z ही होगा। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसको पता लगाने में। सिमिलरली कॉस हाइपरबॉलिक अगर आपके पास है, कॉस हाइपरबॉलिक्स, और आपके पास लिखा हुआ है आयोटा z, तो आप कहोगे ये क्या है, कॉस z के इक्वल है। इट मीन्स कि अगर आपको साइन हाइपरबॉलिक z, सॉरी साइन हाइपरबॉलिक z के वैल्यूज को ढूंढना है तो मैं साइन z की वैल्यूज के साथ उसमें वर्क कर सकता हूं, राइट। तो यहां पर मैं एक और प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ये तो होगी फर्स्ट नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैंने माइनस आयोटा साइन आयोटा z लिखा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये साइन हाइपरबॉलिक z आएगा, एंड कॉस आयोटा z लिखा तो ये आ जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक z। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, याद रखने की इन्हें जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं याद नहीं रखना है आपको बस इन्हें लिख लेना है। जहां पर ये नीड इनकी होगी वहां पर हम इसे देख के लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन होगा। जो जो आपको याद रखना होगा अपने आप आपको क्वेश्चन से याद हो जाएगा, याद रखने की जरूरत किसी भी चीज को नहीं है। नाउ वो सारी की सारी चीजें इवेल्युएट की जा सकती हैं, इसलिए याद रखने की ज्यादा नीड नहीं है इन चीजों को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन हाइपरबॉलिक z के अगर मुझे जीरोस चाहिए तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि मैं किसके ऊपर वर्क करूंगा, साइन आयोटा z के जीरोस के ऊपर बात करूंगा। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, यहां से मुझे पता चला कि आयोटा z की वैल्यू n पाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताओ। क्योंकि साइन हाइपरबॉलिक z कब जीरो होगा, जब ये चीज जीरो होगी। ये चीज कब जीरो होगी, जब आयोटा z की वैल्यू n पाई होगी। यही आपने सीखा था थोड़ी देर पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जीरोस के बारे में। तो यहां से डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि z की वैल्यू n पाई आयोटा होनी चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सिमिलरली कॉस हाइपरबॉलिक z कब जीरो होगा, जब आप आयोटा z की जगह 2n माइनस 1 पाई बाई 2 लिखोगे। अब यहां से हमें पता चला कि ये कब पॉसिबल है, जब आयोटा की इसकी वैल्यू 2n माइनस 1 पाई बाई 2 आयोटा आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइन हाइपरबॉलिक्स को पढ़ लिया, साइन हाइपरबॉलिक कॉस हाइपरबॉलिक को पढ़ लिया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ लिया। अब हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है जिसमें कि हमें ब्रांचेस के ऊपर वर्क करना है, हमें लॉगरिथमिक फंक्शन को भी उसी के अंदर पढ़ना है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर जो कि 5th लेक्चर होगा आपका इस एनालिटिक फंक्शंस में। ठीक है, ऑलराइट, सो थैंक यू।